Jai Shri Mahakal, how is everybody? Kindly turn on your cameras. कितने लोगों का मार्स एंड सैटर्न कंजंक्शन है? Okay, Indu ji, just you? Nobody else? सर एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे That works, that works. सर मेरा है सर Seven मेरा was- भी expect कर रहा है। इवन म्यूचुअल माइंड एक्सपेक्ट करना है मेरी बेटी का। That is nice. सर मेरा भी है, मेरे हस्बैंड का भी है और मेरे बेटे का एस्पेक्ट है। Okay. Cardinal cross conjunction, okay. यस So before starting today's lesson, there is an announcement that we are going to begin with the Vedic astrology course coming basically this week only. So if you want to start from scratch and you are thoda sa bhi interested, you can DM me. And if there are certain factors which are actually stopping you to join, don't worry about those factors. Just DM me, we'll find a way out. Second, if you know astrology and if you feel like that you know astrology, we are actually gonna go through a course of remedies and Vastu. Now, this Vastu is not the Vastu. Okay, that normal Vastu कहता है कि north पानी है, west हवा है, south earth है, whatever it is, right? But in our case, we will be finding the Vastu of your chart. So this is the personalized Vastu, finding the Vastu for self and then working according to it. So it is not the Vastu course, it is basically personalized Vastu and then remedies of every single thing. And if you have any doubts and anything, you can just DM me and don't ask me any syllabus because I don't have any syllabus. Okay? So let's begin with today's lesson. Before that, let me take the question of Taneji. Hanji Taneji, you have a doubt? हाँ ये चीज पूछना था कि मेरा मार्स एंड सैटर्न आर इन एक्सचेंज, तो वो भी क्या कंजंक्शन जैसे ट्रीट होगा? Yeah, that is the conjunction, but exchange yoga का एक different प्रभाव है, so we'll discuss that soon. Not today, but we'll do exchange yoga some other day. अच्छा Got it? Ciao. So before starting lesson, अपने अपने गुरुओं को याद कीजिए, भगवान गणेश को याद कीजिए, so we can actually dive into the easy and interesting topic of Mars plus Saturn. First of all, Mars and Saturn works very differently in male chart and very differently in female chart. This is something which we need to understand from the very beginning, that Mars represents the husband in the female chart. Okay? But in the male chart, it does not represent husband. Okay? There are many things that we need to understand about Saturn and Mars. But the most important thing is, I'll be very to the point today, because Mars is the red light and Saturn is the blue light. Red and blue light किसकी होती है? Have you ever seen red and blue light flashing? Which light is that? एम्बुलेंस पुलिस Yes, that light is governed by ambulances, police, and yeah, basically these two only. Firefighters have only red light, right? So this red and blue light is equal to Mars and Saturn. If you understand this, that is more than enough for today's lesson. If you decode this in detail, you will be able to understand Mars and Saturn in such a way that nobody could have ever told you. Now, the conjunction of Mars and Saturn works very differently. So, we will be understanding few types of Mars and Saturn conjunctions here, okay? So, before getting into it, let me just make Mars and Saturn in different ways.
the very first conjunction of Mars and Saturn could happen in the same house. Okay, Mars and Saturn could be in the same house. Anybody having this? Mars and Saturn in the same house? Okay, Induji is having the Mars and Saturn in the same house. I also. Dipti ji is also having Mars and Saturn in the same house. Okay? Now Mars is actually the quick planet. Saturn is the slow planet. Mars is the sharp planet. Saturn is the blunt planet. Okay, Saturn works slowly. Mars works in extremes. Mars is jhatka or Saturn is slow, halal. When these two planets come together, they actually cause troubles to the house. Now the problem with this planet is that Mars is actually considering Saturn as a friend. But Saturn in return is not really friendly towards the Mars. ठीक है? Saturn is not really friendly towards the Mars. So now if by chance it is in the sign which is favorable to the Saturn, the Mars will be in trouble. But if the Mars is in the sign which is favorable to the Mars, it will actually say less problems to the Saturn. It will actually try to give the positive results of the Saturn. Okay? Now because this is the red light and this is the blue light, this usually causes the intervention of government into the particular part of the life wherever this yoga is activated. Now, government does not mean sarkar. The government simply means some elders, somebody with authority, somebody जिसके पास उस मैटर को लेके जाया जा सके. Okay, let me give you a simple example. If this is happening in the 7th house, your married life will actually reach in front of people जहां आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे कि मुझे इससे ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है. ठीक है? नेक्स्ट पार्ट अबाउट मार्स एंड सैटर्न इज दिस इज एक्चुअली द योगा ऑफ स्ट्रगल but success after struggle as well. You will get the success, but after struggle, after fighting for it. So if it is happening in the first house, your health will have to fight. You will have to fight for your body to survive. And after that struggle, your health will be fine. And usually it's a long struggle because of the Saturn. Okay? If it is happening in the second house, you will actually have to fight and struggle for the family life. You will have to fight and struggle for your finances. If you will fight and struggle for your finances, slowly you will grow in it. If it is happening in the third house, you will actually have to fight for your own communication. And remember, whenever the Mars and Saturn goes in the third house, it is problematic. Tell me why. Third house is basically how you make others work for you. Okay, how you make others work for you. If it is Mars and Saturn together, you will struggle to make other people work for you. Other people won't listen to you. You will have to fight for it. You will have to explain them again and again that why you need that work to be done. And sometimes you need to add court और पेपर वर्क. ओके, ऐसे नहीं सुनता, लीगल नोटिस भेजते हैं. ठीक है? Anybody who is having this basic combination Mars and Saturn, anyhow, they must have experienced one encounter with police, one encounter with court, one encounter to fight for their own rights.
Okay, you will have to fight for your own right because of this particular conjunction. If it is Sir, for that same house, not necessary, related. not necessary. I'll come there as well. ठीक है, इसके अलावा ये तो सिंपल याद रख लेना, पहली प्रिडिक्शन है मंगल शनि कहीं इकट्ठे देखो, पुलिस ऐड होगी लाइफ में, कोर्ट ऐड होगा लाइफ में, कोई ना कोई लीगल फाइट आपको लाइफ में लड़नी पड़ेगी, चाहे किसी भी वे में लड़ने पड़े. ठीक है. इफ इट इज हैपनिंग इन द 4th हाउस, योर एजुकेशन विल सफर, योर मदर विल हैव आर्थराइटिस, your mother will suffer from joint problems. Remember this. If it is Mars and Saturn in the 5th house together, you will struggle to have kids, or your hobbies will not get pursued. You wanted to become somebody else, but now you are somebody else. You will face discrimination in sports. बहुत एफर्ट लगाया अपने स्पोर्ट्स में, लेकिन एंड मोमेंट पे उन्होंने कहा कि सर वो डोनेशन वाले बच्चे को रख लिया है, आपको नहीं रख सके. बिकॉज 5th हाउस इज स्पोर्ट्स एंड मार्स हियर डूज रियली वेल, बट बिकॉज ऑफ द हार्शनेस ऑफ द सैटर्न it doesn't really come true. Mars and Saturn in the 6th will actually make you fight a lot. Even if you don't fight, people will think you are fighting with them. Same is the situation in Lagna. If the Mars and Saturn is in Lagna, people will think you are fighting with them. Even if आप प्यार से कोई बात कह रहे हो, आप सिर्फ अपना पक्ष ही रख रहे हो. ठीक है. Mars Saturn in the 7th house, struggleful married life, especially in the female chart. Also in the male chart though. 7th house में मंगल शनि कोई बहुत अच्छे नहीं है. Tell me one more reason why. Because Mars here is actually in MKS. यहां पर मंगल मरण कारक स्थान में चले गए. अब उसको बचाने के चक्कर में सैटर्न पूरी तरह से डूब जाएगा. शनि किस चीज का कारक है? शनि कर्म कारक प्लैनेट है. तो करियर में भी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर मंगल और शनि 7th हाउस में है. स्लो ग्रोथ इन करियर. गॉट इट? Mars and Saturn in the 8th house, there will be hidden enemies troubling you again and again. You will feel like you are being attacked by black magic. You are being attacked by some enemies. You are being victimized. आपको कोई ना कोई victim बना रहा है बार बार. Mars, Saturn in the 9th house, not really good for father. Now see, you can actually predict in many ways. If the Mars Saturn is here, your father's career will suffer in 6th house because it is 10th from the 9th house. Okay? Next is Mars and Saturn in the 10th house. Your reputation will once be spoiled in the life. The police will come, or you will be involved in a certain case where your reputation will be in trouble. Mars and Saturn in the 10th, struggle, but after struggle, a lot of rise. This is a good yoga to become a judge if the sun is supporting you. This is good yoga to clear PPS, IPS. But if the sun is supporting you, or even if the Jupiter is supporting you. Mars and Saturn in the 11th house, your desires will come true, but only the wrong desires will come true. बच्चा है, छत पे सिगरेट पी रहा है, कहता है पापा ना आ जाए, पापा ना आ जाए, पापा ना आ जाए, पापा आ जाएंगे. पकड़ा जाएगा. मंगल शनि 11th है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड कहे कहीं मेरे को 50 करोड़ मिल जाए, वो नहीं मिलेगा. लेकिन नेगेटिव प्रिडिक्शन विल कम ट्रू लाइक दिस. And remember, 11th house Mars, people usually struggle to fulfill their own desires. They are self-made people. The people coming with no background and creating everything by themselves. याद रखना, मंगल सेनापति है. मंगल एक ऐसी फोर्स है जो बहुत पावरफुल फोर्स है.
और शनि एक ऐसी फोर्स है जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। यदि आप डिसिप्लिन के साथ इस फोर्स को चैनलाइज कर लेते हो तो इससे बढ़िया कोई योग नहीं है। बट यू विल नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, a lot of consistency and ability to fight. If you will not fight, you will not win. You need to fight for your rights here. Mars and Saturn in the 12th, ये कहीं ना कहीं जेल योग टाइप लिखा गया है, और यहीं पर जेल का खाना खिलाने के लिए कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि जेल का खाना खाया हो। खाया किसी ने यहाँ जेल का खाना? एनीबडी Who has ever eaten जेल का खाना? यहां पर कहा जाता है जेल का खाना खाया हो। और मंगल और शनि यदि 12th में चले जाएं, बिकॉज मार्स एंड सैटर्न अगेन डिसिप्लिन प्लस मेहनत, यदि ये इंसान एब्रॉड में जाकर के मेहनत करे तो ये ज़्यादा राइज होता है। लेकिन यदि ये घर पर रहेगा, एग्जाम्पल ले लो यहाँ जुपिटर है, तो बहुत अच्छा है, ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की, क्योंकि बाहर जाते ही स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, मंगल और शनि को एक शब्द से समझते हैं, स्ट्रगल। स्ट्रगल कब शुरू होगी? रिगार्डलेस ऑफ दशा। फर्स्ट हाउस में है तो पैदा होते ही स्ट्रगल शुरू हुई है, यानी कि जब आप पैदा हुए थे आपके घर के सर्कमस्टांसेस स्ट्रगल वाले थे, ठीक है। सेकंड हाउस में है, जब आप बैंक बैलेंस बनाना स्टार्ट करोगे, जब आप कुटुंब के साथ ज़्यादा जुड़ना स्टार्ट करोगे, यू विल हैव ट्रबल्स, स्ट्रगल विल स्टार्ट। थर्ड हाउस, जब भी आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे किसी के साथ, जब भी आप कोई लिखने पढ़ने का काम करोगे। फोर्थ हाउस, जब आप स्कूल जाओगे, मार्स सैटर्न फोर्थ हाउस, द चाइल्ड हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट इन स्कूल लाइफ, and this person will also struggle in the hometown, so should leave the hometown, should not stay in the hometown. जहां आपका बर्थ है वहां नहीं रहना है, ठीक है। फिफ्थ हाउस, द स्ट्रगल बिगेन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। सिक्स्थ हाउस, द स्ट्रगल बिगेन आफ्टर गेटिंग अ जॉब। सेवंथ हाउस, द स्ट्रगल बिगेन आफ्टर मैरिज or getting into partnership. Now Mars, Saturn, 7th house, do not do business in partnership. Never do business in partnership. You will have to involve legal things in later. Mars and Saturn 8th house, in-laws के साथ प्रॉब्लम। जब लाइफ में इन-लॉज आएंगे तब झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। मार्स एंड सैटर्न हियर, जब आप हायर स्टडी करोगे, PhD, the struggle will begin. 10th house, when you actually start your career, the struggle will begin. But remember, this struggle is actually a good struggle, because if you will not struggle, how will you rise? The Saturn actually promises the result. शनि कहता है तू काम कर, मैं तेरे को पैसा दूंगा, तू 100 रुपए का काम करेगा, मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा। लेकिन मंगल कहता है तू 100 रुपए का काम करेगा, मैं 20 रुपए काटूंगा, 80 दूंगा। और लास्ट डे पे मंगल 80 भी नहीं देगा, मंगल कहेगा नहीं नहीं 80 का तो काम ही नहीं था। सो व्हेन यू एक्चुअली डू दिस टू अदर पीपल, फॉर एग्जाम्पल आपने घर पे लेबर लगाई और आपने लेबर से काम करवाना स्टार्ट किया, बात हुई 100 रुपए की, एंड मोमेंट पे अगर आपने उसके 10 रुपए काट लिए तो समझ लो आपने ये योग को एक्टिवेट कर लिया है, अब स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, कुंडली में हो या ना हो। Regardless of the planet in your chart, you don't have this planet in your chart, but if you actually gave जुबान, आपने किसी को जुबान दी कि हाँ ठीक है सर ये 100 रुपए का काम है, हम 100 रुपए में काम करेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जिस दिन पैसे देने की बारी आई, अगर आपने उसका 1 रुपया भी काट लिया, कई लोग अपने घर में जो कामवालियां आती हैं उसके छुट्टी के पैसे काटते हैं। जो छुट्टी के पैसे काटते हैं वो मंगल शनि के प्रभाव में है, ठीक है। कई लोग जिनके घर पे कोई पेंटर लगा, उसने कोई चीज क्रॉकरी सेट गिरा दिया, वो क्रॉकरी सेट का नुकसान कहते तेरे से लेंगे, ठीक है, उसका 1000 रुपया काट लिया, समझ लो मंगल शनि एक्टिवेट कर लिया। यू डोंट नीड टू डू दिस, ठीक है, डोंट बी दैट पर्सन।
तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग कर रहे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द मार्स एंड सैटर्न इज इन द 11th हाउस, जब आपने अपनी इच्छा के साथ कोई काम कर लिया ना, कि मैं ये करना चाहता था, मैंने ये कर लिया, लाइफ में स्ट्रगल और झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे. ये यूजुअली लेडीज़ के चार्ट में यहाँ होता है. तो लड़कियाँ आकर के कहती हैं कि मैं ये काम करना चाहती थी, मैं ये जॉब करना चाहती थी, या मैं यहाँ पर जाना चाहती थी, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ. जैसे ही मैं अपने हस्बैंड को ये बात बोलती हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, वैसी लड़ाई हो जाती है, वैसे रिलेशन खराब हो जाते हैं, बिकॉज इट इज कमिंग इन द ट्राइंगल ऑफ द 7th हाउस. 12th हाउस मार्स एंड सैटर्न, नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप्स. If you start the hidden house, this is the hidden house, right? This is your hidden talents. This is also the house of bed and pleasures. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिडिक्शन देनी है. अगर इसका 7th हाउस के साथ कोई संबंध बन रहा हो, सारा दिन रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, रात को बेड पर जाकर के झगड़ा हो जाता है. ठीक है. मंगल शनि झगड़ा भी है, मंगल शनि झगड़ा भी है, जहां जाएगा वहां झगड़ा कराएगा. वाई? बिकॉज दीज टू प्लैनेट्स आर एक्चुअली वेरी इंटेंस प्लैनेट्स. ये एक तलवार की, एक मयान में बेसिकली दो तलवारें हैं. दो तलवारें एक मयान में रखनी बहुत मुश्किल है. बहुत शार्प और इंटेंस रिजल्ट्स आते हैं इसके. 7th में आएगा हस्बैंड वाइफ की लड़ाई रहेगी. 10th में आएगा आपको करियर में झगड़ा मिलेगा. 4th में आएगा घर पर लड़ाई झगड़ा मिलेगा. 5th में आएगा बच्चे के साथ झगड़ा मिलेगा. 6th में आएगा तो हर जने खने के साथ झगड़ा मिलेगा, और आप नाजायज इन्वॉल्व हो जाओगे. आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब इन्वॉल्व हो गए उस फाइट में. यू आर नॉट इवन पार्ट ऑफ इट, बट नाउ यू आर सडनली यू आर पार्ट ऑफ इट. दिस इज मार्स एंड सैटर्न, बिकॉज दिस इज रेड एंड ब्लू लाइट ऑफ द पुलिस. द पुलिस हैज टू बी इन्वॉल्व इन द फाइट्स विदाउट देयर विश. दे डोंट वांट टू, बट दे स्टिल बी. अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं. एक कुंडली का योग होता है, ये भी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, और वो ये योग होता है. यदि आपकी कुंडली में मंगल शनि सामने सामने है, तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी. यू विल फाइंड पीपल विद मार्स एंड सैटर्न कमिंग फ्रॉम इवन मिलियनियर फैमिलीज, but they have to become self-made. They have to go somewhere else, put efforts into their life, become something by own. That is what Mars and Saturn becomes. But will this come as success later? Yes, only if the planets are on both sides of the chart. Let me, अगर मैं इस चार्ट को यहां से आधा काट दूं जहां मंगल शनि है, अगर तो दोनों साइड पर प्लैनेट्स हैं, तो फिर स्ट्रगल कम, मतलब स्ट्रगल तो होगी, लेकिन स्ट्रगल के बाद सक्सेस भी होगी. लेकिन अगर बाय चांस एक ही साइड पर प्लैनेट्स हैं, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ राहु और केतु कर दूं, तो कुछ लोग आप में से इसको काल सर्प दोष कहेंगे. ठीक है. अगर मैं यहाँ राहु कर दूं, यहाँ केतु कर दूं, तो यहाँ 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 प्लैनेट है, तो आप लोग कहोगे अरे ये तो काल सर्प दोष है. एक्चुअल में काल सर्प दोष नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता. देयर इज नथिंग कॉल्ड काल सर्प दोष. ओके. So similar to this, this yoga is also called nothing, but this is mentioned that if Mars and Saturn comes in front of each other and the planets are engulfed by them, this will cause a struggle of the person. This is Bandhan Yoga. Okay, this is Bandhan Yoga. आप चाहकर भी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाते जो आप करना चाहते होते हो, यदि प्लैनेट एक साइड पर आ जाए, चाहे ऊपर आ जाए चाहे नीचे आ जाए. अब अगर यहां मंगल है यहां शनि है, तो चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए. इफ इट इज ऑन वन साइड ऑफ द चार्ट, इफ दे आर एनगल्फ्ड बाय मार्स एंड सैटर्न, यू विल एक्चुअली हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. ठीक है. बट इफ इवन वन प्लैनेट हैज एस्केप्ड, दैट स्ट्रगल विल इवेंचुअली ब्रिंग सक्सेस. गॉट इट? So this is another type of combination of the chart. Now there is also another type of combination of the chart. Let us see that combination. Now this is also the combination of the chart. Mars is looking at Saturn. Now remember, when the Mars is looking at Saturn, he is actually looking with the friendly drishti.
because मंगल considers शनि as दोस्त. मंगल शनि को दोस्त समझता है. तो जब भी मंगल शनि को देखेगा, ऐसे लोग अपने काम को बहुत हुम हमा करके शुरू करेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करेंगे, बड़ी जल्दबाजी में शुरू करेंगे, एंड यूजुअली दे बिकम वेरी गुड बिगिनर्स बट नॉट वेरी गुड फिनिशर्स. They might start a lot of things and they will struggle that their things are not ending well. Okay? On the other hand, if the Saturn is actually aspecting the Mars, it is looking with the drishti as an enemy drishti. He is not looking as a good drishti. शनि कहता है कि मैं तेरे को देख रहा हूं, तेरे हर, मार्स इज एक्शन, मंगल एक्शन है ना, शनि इसके हर एक्शन को देख रहा है. आपका थोड़ा सा भी गलत एक्शन और ये शनि आपको सजा दे देगा, बिकॉज शनि सजा देने वाला प्लैनेट है. तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, इनका गलत काम बहुत जल्दी पकड़ा जाता है. ये हल्का सा भी कुछ गलत करेंगे और ये नजरों में आ जाएंगे. Because न्यायाधीश, न्यायकारका planet, this is न्यायकारका planet, right? We all know this is न्यायकारका planet. This न्यायकारका planet is looking at Mars. He is telling कि तेरे हर एक्शन पर मेरी नजर है, just like a judge is looking at every action of yours, or the lawyer of other team is looking at every action of yours. Now, if in this case you actually fight a case, you actually have a court case, you might have defeat. Okay, because every single thing is looked by the Saturn. यदि आप गलत हो तो आपको डिफीट मिलेगी, लेकिन यदि आप सही हो तो आपको विजय भी मिलेगी. Because judge is directly looking at your actions. He is actually saying, okay, this guy is right, this guy is not doing anything wrong. Got it? Now there is another part. See, there are goods and bads, right? So the good is that it is a struggle yoga, but it will actually eventually bring you success. And if you channelize it with your discipline and actions, basically consistency, if you make your work consistent, whatever work you could do, I don't care what work you are into, whatever you are into, just be consistent into it. Don't be a person ki थोड़ी देर शुरू किया छोड़ दिया, थोड़ी देर शुरू किया छोड़ दिया. Don't be that person, because Mars Saturn is that person. Okay, there are better actors than the Hollywood actors, you know, but unfortunately they were not consistent enough, so they didn't become anything. So it's the consistency which is actually the key to success, nothing else. Now there is one more yoga, which is the worse house. If it is supported by Jupiter, Surya, only then that house is saved. Otherwise, that is gonna give you very negative results. That is Mars behind the Saturn. What will happen when the Mars will go right behind the Saturn? Anybody who knows the answer? हाँ जी इंदु जी, what will happen? सर मार्स सैटर्न से 12th आ जाएगा, जो कि जेल योगा बनाता है. नहीं, एकदम नहीं. और कुछ. सर आपने Saturn भी से बताया था कि दोनों सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जिस हाउस पे जाएगा और मार्स का It is fourth going to aspect the same house. The Mars and Saturn both are looking at the 8th house now. That is the most problematic part of Mars and Saturn. This is not the conjunction, but the conjunction of their drishti is happening at a particular house. अगर मंगल और शनि की इकट्ठी दृष्टि किसी घर पर आ जाए, वो घर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक घर होता है. मंगल शनि जहां खुद इकट्ठे हैं वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंगल और शनि यदि किसी घर को इकट्ठे देख रहे हैं, वो सबसे प्रॉब्लमेटिक है. अब ये जो योग है ना, ये सडन एक्सीडेंट, सडन इंजरीज, एंड इफ नॉट चैनलाइज्ड इवन सडन डेथ. ठीक है, क्योंकि 8th हाउस मृत्यु का घर है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो
मंगल और शनि जो हैं ये किसी एक घर को इकट्ठे देखते हुए सबसे बुरे हैं। सर मेरे दोनों इकट्ठे 12th हाउस को देख रहे हैं, जैसे मंगल है मेरा 9th हाउस में और सैटर्न है 10th हाउस में। Yes, this is not a good yoga for the 12th house. She might lose some investments in her life. Okay? And this is also bed, pleasure, and all those things. This is also investment. This is also your hidden talent. You might have a hidden talent, but you are not able to express it out to other people. वो दबा दिया जाएगा. This is also court सर case. अगर फिफ्थ हाँ जी. सर अगर ये 5th हाउस में दोनों देखे सैटर्न मार्स का तो एस्पेक्ट, बच्चे सैटर्न का थर्ड बच्चे स्ट्रगल करेंगे, बच्चे स्ट्रगल करेंगे। आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्ट्रगल करोगे, अपनी हॉबीज में स्ट्रगल करोगे। 5th हाउस इज ऑल्सो फ्यूचर, तो ऐसे लोग यूजुअली बहुत अच्छे फैमिली में बहुत अच्छी सिचुएशन में पैदा होते हैं, लेकिन फ्यूचर थोड़ा स्ट्रगल वाला मिलता है। ठीक है, सो इस चीज को याद रखना है। यदि अब जितने लोगों ने कहा था कि मेरी कुंडली में मंगल शनि कंजंक्शन है, वो होगी, लेकिन ये कंजंक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द मार्स एंड सैटर्न हैविंग द डायरेक्ट कंजंक्शन। सर ये भी हो सकता है कि जैसे बाहर जाके प्रॉब्लम आए। यस, यू शुड अवॉइड गोइंग अब्रॉड। जब भी बाहर जाओगे प्रॉब्लम आएगी, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आएगी। दिस इज हॉस्पिटल। ठीक है, जैसे किसी को देखने जाएंगे तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। यस, you should not visit hospital to meet somebody. You should not go to unknown places alone. ठीक है, this is also mother of the father, grandmother, right? This is 4th from the 9th, and this is 9th from the 4th. So मम्मी के पापा यानी कि आपके नाना जी और आपकी दादी, so नाना जी और दादी could be in trouble somehow. जब वो थे मतलब तब ट्रबल वाला। हाँ। सर तो जुपिटर यहाँ पर अगर सन कैसे सेव कर सकता है इस combination? Jupiter will intervene if the Jupiter is intervening into it, not direct intervention. If the Jupiter is there, that is direct intervention. Direct intervention में Jupiter कभी किसी को सेव नहीं करता। Jupiter सेव करता है indirect intervention में। यहाँ आ गया गुरु देख रहा है अब। गुरु will keep providing healing, constant healing. सर 8th हाउस में है जुपिटर, Very फिर तो good, healing very देगी। good, very good. So अब 8th house में Jupiter है, it is actually providing healing to it. अब now you know why you never went to jail. Now you know you never went to jail, right? If the Jupiter was not here, ये जेल का पूरा योग था। 12th house मंगल शनि। ठीक है? मतलब कोई भी ट्रबल आएगी पर वो हील हो जाएगी। सेव हो जाएगी। Before actually reaching to its peak, it's gonna be resolved. The Jupiter will intervene as a guide. He will guide you. आपको right time पे right situation से निकलना सिखाएगा गुरु। There are two type of situations. In the case of Surya, right time पर right जगह पर होता है इंसान। ठीक है, आप right time पर right जगह पर होते हो। यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है, आप किसी को दोस्त को मिलने गए थे और वहां पर आपको एक और इंसान मिला, उसने कहा मैं आपकी इस बंदे से मीटिंग कराता हूं, वो मीटिंग के चक्कर में आपका बिजनेस बहुत बड़ा एक्सपैंड हो गया। दैट इज बीइंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, दैट इज गिवन बाय सूर्य। ऑन द ऑपोजिट हैंड, लीविंग द प्लेस एट राइट टाइम इज गिवन बाय जुपिटर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यू वर एट अ पर्टिकुलर प्लेस और आप वहां से अभी निकले ही हो, आपको निकले अभी 15-20 मिनट हुए हैं और आपको पता चल रहा है कि वो जो पार्टी थी वहां पर पुलिस ने इंटरवेन करके सबको गिरफ्तार कर लिया है। आप सेव हो गए। आप राइट टाइम पर प्लेस को लीव करना जानते हो। कुदरती गुरु आपको मौका देता है राइट टाइम पर राइट प्लेस से निकलने का। यह फर्क है गुरु और सूर्य में। सूर्य आपको राइट टाइम पर राइट प्लेस पर लेकर जाता है क्योंकि वो शाइन है, वो लाइट है, इट विल हाईलाइट यू। But the Guru will not highlight you. Guru will just secretly guide you that, okay, Seema, leave this place. Seema, leave this relation. Seema, don't meet these people. Don't talk to them. ठीक है? And you will go away from it and then suddenly realize, oh no, these people were planning these things against me. That is what Jupiter intervention is. So Jupiter intervention is beautiful. It will actually save you by
गिविंग लाइक मेकिंग यू स्टेप बैक ऑफ द थिंग्स. समझे? तो गुरु का प्रभाव यदि किसी भी योग में किसी भी वे में आता है, आपके किसी भी कुंडली में नेगेटिव से नेगेटिव योग पर भी यदि गुरु का प्रभाव आता है तो गुरु आपको सेव ही करता है. सर जैसे ये मंगल और शनि है, जिस घर में देखेंगे और उसमें प्लैनेट है तो उसको भी खराब करेंगे. कैसे? हाँ, डेफिनेटली दैट प्लैनेट विल बी इन ट्रबल टू. जैसे सन और मरकरी है मेरे 12th में, तो उनको भी ट्रबल आ yes, गई. yes, yes. But again, the Sun and Mercury is actually being saved by the Jupiter. तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी थोड़ी बहुत आएगी, बट वो बच जाएंगे. बहन के साथ तो जैसे मेरा म्यूचुअल है 5th हाउस में एंड जुपिटर इज इंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम द लग्न, देन मैम एक मिनट में It will save the- आप वेट करो, मैं 1 by 1 ले रहा हूँ क्वेश्चंस. ठीक है, Okay. एक मिनट वेट करो. ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, यहाँ से 7, 8, 9, 10. अब ये शनि की 10वीं दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है. यहाँ पर फादर विल कम इनटू स्ट्रगल, और दिस इज एक्चुअली अ ट्रू केस. यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी और यहाँ पर सूर्य वॉज इन वेरी बैड कंडीशन. सो आई जस्ट आस्क्ड देम, डज दिस पर्सन इवन हैव फादर राइट नाउ? तो दे सेड नो. ठीक है, तो दिस इज मार्स प्लस सैटर्न एंड सन इज इन द बैड कंडीशन. Okay, now sun can be debilitated, or sun can be with Ketu, sun can be with Rahu. So ऐसे हम प्रिडिक्शंस करते हैं. अब सेम यहाँ ले लो, यदि यहाँ पर मार्स है तो यहाँ पर इसको देख रहा है, इसके ट्रायंगल में है, तो मदर के लिए भी अच्छा नहीं होगा. तो दिस इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द मार्स एंड सैटर्न. इसको बहुत ध्यान से याद रखना है कि जहाँ मंगल शनि देख रहे हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है रादर देन जहाँ पर मंगल शनि हैं. अगर वो इकट्ठे कहीं देख रहे हैं, समझ लो वो घर गया. दैट हाउस विल गिव यू ट्रबल्स, दैट हाउस विल गिव यू स्ट्रगल्स, दैट हाउस विल कॉज लीगल इश्यूज फॉर यू. दैट हाउस इज एक्चुअली वेयर द पुलिस लाइट इज रियली फ्लैशिंग, लुकिंग इनटू इट. ओके, दैट इज अ मैटर विच दे विल एक्चुअली रिवील टू द पब्लिक. हाँ जी चंदा जी, वांट टू से समथिंग? सर अगर चार्ट में जुपिटर डेबिलिटेशन में हो, स्टिल इट इज गोना सेव द. So what if the Jupiter is debilitated? तो उसकी एस्पेक्ट सेव करेगी. या डेफिनेटली अलग तरीके से सेव करेगी. डेबिलिटेशन में गुरु आपको अलग तरीके से सेव करता है, एक्सॉल्टेशन में अलग तरीके से सेव करता है, फ्रेंडली साइन में अलग तरीके से सेव करता है, एनिमी साइन में अलग तरीके से सेव करता है. और रेट्रो होता है रेट्रो हो तो अलग तरीके से सेव करता है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको 2 फटाफट से. यदि मंगल एनिमी साइन में है तो आप उस पार्टी से धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे. ठीक है, आप गालियां निकालोगे, मेरे को निकाल दिया, मेरी क्यों फाइट हुई, गार्ड्स मेरे साथ एवं लड़ पड़े, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था. बट गार्ड्स विल एक्चुअली पुश यू, थ्रो यू अवे लाइक एन एनिमी. ओके, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल गेट टू नो दैट द पुलिस केम टू द पार्टी. After 10 minutes you'll get to know, oh, something bad happened. On the other hand, if it is in a friendly sign, it will actually save you. Like your friend will come outside and say, hey भाई जरा 5 मिनट बाहर आना यार, काम था तेरे से. And you will go away, you will come out in a very happy jolly mood that you're gonna meet a friend, and then your friend will suddenly say, oh no, you know I have to take my car somewhere, can I actually borrow your car? And then you are like, no, there is some stuff in my car, I have to get it out. By the time you get into the parking, the police intervenes into the party. It is a different way of Jupiter saving you. Okay, if the Jupiter is exalted, it will save you with money. Okay, Jupiter exalted will actually, if it is debilitated, it will save you with money. Because from here, the Jupiter will be looking at the house of finances. Okay, so I have a friend, like a very close friend of mine, and we were on the streets in California, and he suddenly hit a door of somebody's car. Okay, he's having the Jupiter debilitated. तो वो जिसकी कार पे उसका डोर लगा था, तो वो कार वाला आके इसको थोड़ा रूड तरीके से बोलने लग पड़ा. तो ये उसको कहता, यू नो व्हाट, आई हैव अ सुपर पावर. कहता व्हाट? कहता आई हैव 1.5 मिलियन डॉलर्स इन माई अकाउंट. सो कहता आई विल बाय योर कार राइट नाउ, गो अवे. सो दिस इज अ वे ऑफ जुपिटर debilitated saving with ego. He said आई विल बाय योर कार राइट अवे, जाके नहीं ले ले.
ठीक है, तो वो जुपिटर विल सेव यू विद मनी, जुपिटर विल एक्चुअली हेल्प यू सेव थ्रू रिसोर्सेज, दिस इज हाउस ऑफ रिसोर्स. Okay, but when the Jupiter is actually exalted, it will save you with unknown help. 12th house, you will never know who helped you. You will never know who actually was blessing you at that time. Got it? Just like अगर आपका पेपर चेक हो रहा है और किसी ने आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा ग्रेस देके पास कर दिया, आपको नहीं पता किसने किया. ये गुरु एग्जॉल्टेड है. लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है, आपने ही टीचर को बोला सर देख लो यार, थोड़ा कर दो यार, सर देख लेना पेपर नहीं अच्छा हुआ, ही माइट टेक समथिंग इन एक्सचेंज विद फ्रॉम यू एंड पास यू, कोई बात नहीं, पास हो जा. दैट इज डेबिलिटेटेड जुपिटर. सो जुपिटर डेबिलिटेटेड एक्सॉल्टेड हम किसी दिन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अभी तो मैंने आपको बहुत ऊपर ऊपर से समझाया है, ठीक है. सर वन मोर, अगर सैटर्न और मार्स का एस्पेक्ट म्यूचुअल एस्पेक्ट है तो एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रगल बट विनिंग लेटर. They will actually struggle a lot in their life, but they will be down to earth people because they have seen the struggles and they are very good advisors. Okay, हाँ जी मानसी जी, you have to say something. हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, सपोज आपने बोला कि मार्स और सैटर्न एक हाउस को देख रहे हैं, मतलब 212 वाली रिलेशनशिप है, सपोज 5th हाउस को देख रहे हैं और मार्स के साथ जुपिटर बैठा हुआ है रेट्रो, ठीक है. तो सिंपल केस में आपके हिसाब से वहां पे वो 5th हाउस को प्रोटेक्ट नहीं करेगा जुपिटर. No, no, no. If it is sitting with it, see. Yes. Remember, the Jupiter is not just a saving ability. Jupiter is also जीवा. जीव यानी कि आप खुद. अब आप खुद मंगल शनि के साथ बैठ गए हो. यानी कि आप कहते हो आ बैल मुझे मार. You attract the situations, you go into the situation to actually get into the worst part of the situation. Okay, so यहाँ पे हम recommend करते हैं कि गुरु को यानी कि जीव को right guidance मिलनी जरूरी है. Now this is a point when we strengthen the Surya. Okay, if the Surya is strengthened enough, that will guide the Jiva, that will tell the Jiva to not go at that particular place. Okay. Okay, if the kids are usually, I see people with the like kids having that particular yoga, I tell their parents that you have to become their guide. Do not let them do anything without your guidance. तो सर इस केस में बच्चों को गाइडेंस चाहिए या जीव को खुद को गाइडेंस चाहिए, मतलब जीव को भी चाहिए और बच्चों. मैं कह रहा हूँ बच्चे का अगर केस है ये, if this is in your child's chart, okay, then I usually tell them to be guided under the Surya, father, mother. या तो सूर्य गाइड करेगा या चंद्र गाइड करेगा. ठीक है, तो सूर्य की गाइडेंस भी अलग है, चंद्र की गाइडेंस भी अलग है. अब ये दोनों गाइडेंस में भी डिफरेंस है. सूर्य विल गाइड यू. सॉरी मैं बीच में रोक रही सर आपको. ये अगर जुपिटर रेट्रो होगा उस केस पे फिर 5th हाउस पे एस्पेक्ट जाएगा जुपिटर का? क्यों नहीं जाएगा? तो फिर यहाँ पर फिर वो सेव कर लेगा ना उस 5th हाउस को. देखो, गुरु के एस्पेक्ट नहीं बदलते रेट्रोग्रेशन में. अच्छा, ठीक है, ये जिन्होंने पढ़ा हुआ ना चंदा जी, याद है हमने श्लोक निकाले थे, वो श्लोक से पढ़ाया था मैंने कि गुरु के एस्पेक्ट नहीं बदलते. ओके, ठीक है. हाँ जी इंदु जी. सर वही सैटर्न और मार्स का कंजक्शन सर मेरा मतलब फाइट 7th हाउस में है, तो ये तो वेरी जनरल की स्पाउस के साथ तो लड़ाई होती है. लेकिन मेरा सर एक जेल योग बना था, लेकिन फिर मेरा सेव भी हो गया था. जुपिटर तो का अफ्लिक्शन है, सूर्य या जुपिटर बचा रहा है कोई? हाँ, जुपिटर का 5th है एस्पेक्ट है 12th हाउस को. सर मेरा सैटर्न और मार्स 7th हाउस में है और जुपिटर 8th हाउस में है. इज इट रेट्रोग्रेड? हाँ सर, रेट्रोग्रेड है. बस बात खत्म हो गई. जुपिटर इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द मार्स एंड सैटर्न, ही इज ट्राइंग टू सेव इट. अच्छा, इस तरह ये नहीं कि उसकी 5th दृष्टि 12th पे आ गई, वैसे नहीं. वो नहीं, दैट्स नॉट द रीजन. द रीजन इज जुपिटर इज रेट्रोग्रेड. सर अगर हम इसकी एज जैसे निकालें, मुझे तो पता है मेरी कौन सी एज में हुई थी, तो हम क्या ये दोनों सैटर्न और मार्स के दोनों का प्रोग्रेशन देखेंगे? प्रोग्रेशन देख सकते हो. प्रोग्रेशन के अलावा आप दशा देख सकते हो, एक्टिवेशन देख सकते हो, गनाती कारका की एक्टिवेशन देख सकते हो. गनाती कारक. ठीक है. हाँ जी चांदनी जी. हेलो सर.
Okay. Sir, you did say that Saturn does not like Mars. Mars still likes Saturn, Yep. right? So my Saturn in 4th house is in a Scorpio sign. Wait. Or- दोबारा बताना. Your My Saturn is in 4th sign. fourth sign किस Scorpio sign? So in the 4th house in the Scorpio sign. That is your Saturn, right? Yes, sir. Okay. And it is aspected by Mars from the 10th house. ये आ गया ना, पहले तो यही स्ट्रगल आ गई. Yeah. ठीक है, फाइट, स्ट्रगल, फाइटिंग फॉर योर राइट्स. Yeah. Although, as you explained, my Jupiter is in 8th house. The problem is the first house. First house? Mars is looking by the Mutual 4th aspect. aspect. Saturn is looking by the 10th aspect. Right. So the problem comes here. Okay, Leo will become the problem. What is Leo? Leo is love life. Leo is kids. Leo is your future plannings. So all these things will be destroyed. All these things will actually be under the influence of Mars and Saturn, and you will face troubles and struggles with these things. Also, Okay. also health. Yes, my health does not stay that well. Yeah. And sir, Jupiter from 8th house is looking at 4th house. Yep. So it is actually making you धर्म योगा. धर्म योगा यानी कि आपको राइट टाइम पर अननोन लोग हेल्प कर जाएंगे. Okay. ठीक है. So you will actually get the help from unknown people, and you won't even know who helped you. Oh. Okay. Now why unknown people? Because this is natural Scorpio and this is already placed in Scorpio. Okay. ठीक है. So hidden help will come. सर घर वालों से भी हेल्प मिल सकती है क्या? घर वालों से हिडन मिलेगी. सामने आके घर वाले हेल्प करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी. They will help you from behind. Yeah, I always feel I am the fighter. I don't have help apart from God. So I don't know. That is Jupiter only. Can hidden help also be spiritual thing? Yeah, it could be. Okay. Thank you, sir. ठीक है. हाँ जी अमित कौर जी बताइए. हेलो. हाँ हाँ जी, जी सर, मेरा म्यूचुअल एस्पेक्ट है 5th हाउस पे, सैटर्न एंड मार्स का. मार्स फ्रॉम द 10th हाउस एंड सैटर्न फ्रॉम द 3rd हाउस, एंड सेम टाइम सन जुपिटर एंड वीनस फ्रॉम द 11th हाउस. ऑल इज एस्पेक्टिंग माय 5th हाउस. तो कोई टेंशन ही नहीं है ना. So फिर तो how कोई could प्रॉब्लम I- फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना जी. देखो गुरु ने तो सीधे ही सेव कर लेना. गुरु के साथ सूर्य आ गया, सूर्य ने भी सेव कर लेना. तो ही इज एक्चुअली सेविंग इट. सो यू विल नॉट हैव रियल ट्रबल्स विद इट. मे बी योर चिल्ड्रन विल बी अवे फ्रॉम यू. They are with me away from their father. किसी ना किसी से अवे रहेंगे. I have to do lot of struggle for them. Yeah. But the Jupiter will actually save you. See, now the Jupiter gave you the children and not the father. समझ में आ रहा है? Yes sir, yes. ठीक है. ये स्ट्रगल हुई, यहाँ पर फाइट हुई फॉर दिस हाउस, एंड द जुपिटर गेव इट टू यू. जुपिटर गेव यू एज अ ब्लेसिंग. Yes, thank you. ठीक है. हाँ जी कलाकार जी, क्या बात है सर, कलाकारियाँ कर रहे हो. हेलो सर. पहले तो सर बिग फैन, मैं आपके बहुत से वीडियोस देखता हूँ और बहुत सीखता हूँ आपसे. थैंक यू सर. व्हाट्स योर रियल मैं- नेम बाय द वे? माय नेम इज राजेश शिरोडे. इतना अच्छा नाम है, आपने कलाकार लिखा हुआ है यार. नहीं, मैंने कलाकार लिखा है क्योंकि मुझे वो एक्टिंग वगैरह की मतलब थोड़ा है ना, इसलिए ये मेरा दूसरा अकाउंट एक्चुअली, ओके. इसलिए मेल का. व्हाट्स योर यस. क्वेश्चन? मुझे सर पूछना ये था कि मेरा जो सैटर्न है वो मार्स के नक्षत्र में है. दैट इज अ तो कंजंक्शन. उसका दैट इज अ कंजंक्शन. मार्स के कौन से नक्षत्र में है? वो है मार्स के मृगशीर्ष नक्षत्र में है. मृगशिरा में है ना. तो इट इज एक्चुअली सैटर्न प्लस मून. मृगशिरा का जो लॉर्ड है वो है सोमा. ठीक है. सो सोम देव के नक्षत्र में आपके शनि देव हैं. तो अब आप एंड सैटर्न इज इन द 6th हाउस. दैट डजंट मैटर. जब हम नक्षत्र कर रहे हैं हाउसेस उसे सब साइड पे रख दो. सो सोम Yes, के yes, sir. नक्षत्र में जब शनि आएगा,
if you by chance get into alcohol, you will start facing struggles into your life. Secondly, this will actually give you overthinking. This will actually give you change of your activities every single day. ठीक है, आज मैं ये करना चाहता हूँ, कल मैं वो करना चाहता हूँ, परसों मैं वो करना चाहता हूँ. ठीक है. So again, consistency is the key. Make sure you get into consistency. Okay, so what is the remedy for this? Can you suggest some remedy? Sir, for it? remedy, do not get the remedy from the one reference point. Always make sure remedy is not that easy कि एक point से मैं आपको remedy बता दूँ. We need to see the full chart for that. ठीक है, क्योंकि ये एक नक्षत्र है, बाकी के नक्षत्र कहाँ कैसे काम कर रहे हैं, we have to see and channelize it according to it. Okay. ठीक है. Okay. हाँ जी चांदनी जी, Yes. you wanna share something Thank else? Sir, I wanted to ask, is it possibility struggle होगा जैसे health को लेके first house you told us, is there an age or is there a possibility would it be for rest of the life it be same, or there has to be a chance that every house, every planet would age and there would be some improvement? See, there are two parts of astrology. One is the static part, one is the dynamic part. In the Right. static part, we will say कि यहाँ पर health issue आएगा because it is in the lagna, right? Now in the static part, we actually find the timing of events. Okay, we actually find the progression happening, we actually find the dasha activation happening, we actually see the signs activating. So that is a bit complicated and hard to explain in small reference point. तो उसको समझाने के लिए मेरे को बहुत लंबे लेक्चर लेने पड़ेंगे. But remember, it is the dynamic part of astrology which actually gets the things out. ठीक है, अब किसी बच्चे के चार्ट में अगर ये योग है कोर्ट केस का, तो वो उसी एज में थोड़ी हो जाएगा. एक 5 साल के बच्चे पे थोड़ी कोर्ट केस हो जाएगा. सो वो एक्चुअल में एक्टिवेट कब हो रहा है? विद द दशा, विद द प्रोग्रेशन, विद द ट्रांजिट्स. दीज आर जस्ट 3 मेजर फैक्टर्स हु एक्चुअली एक्टिवेट थिंग्स इनटू योर लाइफ. ठीक है. Thank you, sir. तो जब भी Sir. आपका यहाँ पर कोई गुरु जैसा प्लैनेट, अभी गुरु यहाँ पे कब आएगा? गुरु यहाँ पे अभी कैंसर में आने वाला ना. सो गुरु विल बी Yes. हियर आफ्टर 1.5 year अराउंड. तो 1.5 साल के बाद यू माइट सी सम हेल्थ ट्रबल्स. द जीवा विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स एंड सैटर्न टुगेदर. Ah, okay. Thank you. Nice explanation. Thank you so much. हाँ जी रिया जी, यू वांट टू से समथिंग? जज जिनका हो गया क्वेश्चन प्लीज हैंड डाउन कर लेना. ठीक है. सर जो सन है वो कैसे इस कॉम्बिनेशन में हेल्प करेगा? मतलब अगर सन ही सैटर्न के साथ बैठ गया या like- सन सैटर्न के साथ बैठ गया तो फिर तो ये कंजंक्शन ही चेंज हो गई ना. फिर कंजंक्शन हुई सूर्य शनि मंगल. ओके ठीक है, क्योंकि जब सूर्य और शनि साथ में बैठते हैं, ये बाप और बेटा हैं. एंड दिस इज द अनएक्सेप्टेड चाइल्ड ऑफ द सूर्य. So Right. that is a totally different story to explain. Someday we will explain you the Saturn and Sun in conjunction. सर फिर मतलब मार्स और सैटर्न जैसे एक ही घर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर कैसे वो करेंगे उस घर को? कैसे? लेकिन जैसे मेरे चार्ट में मार्स है फर्स्ट हाउस में एंड सैटर्न है 7th में ठीक विद है. सन. ये विद सन का चक्कर है ना, सारी प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी यहाँ विद सन की. ठीक है. मतलब मेरा था कि 4th हाउस को वो दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हाँ, हैं. कर रहे हैं. Yes. So this is हाँ. 4th house being expected. Your mother could be having health issues. Okay. Your mother could be having arthritis. Your mother could be having joint pains and back pain and bone break. कभी ना कभी हड्डी टूटती है. मंगल शनि याद रख लेना, हड्डी टूटती है. ओके ठीक है. मंगल शनि में बोन जरूर ब्रेक होता है बंदे का. ठीक है. सो इन योर केस इधर योर मॉम और योर कॉलर बोन और रिब कुड बी इन ट्रबल. सो टेक केयर ऑफ इट. एंड सर अगर यहाँ पे कोई ग्रह भी आ जाए तो फिर तो पूरी कुंडली दिखा लो. नहीं मतलब फिर वो भी हो जाएगा ना कंसीडर सी इसमें. एस्ट्रोलॉजी में यही खासियत है कि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक द थंब प्रिंट्स. एवरी थंब प्रिंट इज डिफरेंट. ठीक है. तो मज़ा तब है जब आप पूरा इसको डिटेल में पढ़ोगे ना, तो फिर वो डिफरेंट आएगा. अब यहाँ पे सूर्य अस्त है. ठीक है. सन इज एक्चुअली सेटिंग. नाउ सन इज सेटिंग एंड सैटर्न इज गेनिंग स्ट्रेंथ हियर. ठीक है. तो यहाँ आपके चार्ट में अगर लगना शनि के साथ कंपैटिबल है तो मैरिज डिले कर देगा पहले तो बहुत कुछ है यहाँ पे. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट. फिर ये सन मार्स को हेल्प नहीं करेगा लगन में? ये सन मार्स को हेल्प नहीं करेगा. अगर मार्स को सिर्फ ये तब हेल्प करेगा, देखो याद रखना शनि वेस्ट में है.
शनि इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन का बल है उसके पास, ठीक है ना। और जब किसी के पास डायरेक्शन का बल होता है ना, ये वो सिचुएशन है जहां कांस्टेबल इज मोर पावरफुल देन चीफ मिनिस्टर। जो कांस्टेबल ने लिख दिया ना मौके पर, वही फाइल जाएगी सुप्रीम कोर्ट तक। तो मौके का अफसर कौन है, याद रखना, मौके का अफसर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको चीफ मिनिस्टर जानता है, मान लिया मैंने, लेकिन एक हवलदार ने एफआईआर में लिख दिया कि ये मर्डर के टाइम पर वहां मौजूद थे और मर्डर वेपन इनके घर से मिला है। गेटिंग द पॉइंट? सन इज सरकार, आपको नो डाउट सरकार जानती है, लेकिन मौके के अफसर अगर आपके खिलाफ हैं तो आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, आपको केस भी लगेगा, फाइनली जीत भी जाओगे 80 साल की उम्र तक जाते जाते, तो उसका क्या फायदा। सर ये सन अगर फर्स्ट हाउस में होता तो सन अगर फर्स्ट में होता तो ये एक अलग तरह का, ये दिस विल बी द कॉन्ट्राडिक्शन, इनकी लाइफ में बहुत फाइट्स आती। क्यों? क्योंकि सूर्य अपनी गद्दी में है, शनि अपनी गद्दी में है, बाप और बेटा झगड़ते, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह राजे हैं, दोनों कह रहे मैं राजा हूं, बेटा कह रहा मेरे हिसाब से घर चलेगा, बाप कह रहा मेरे घर हिसाब से घर चलेगा, जस्ट लाइक मिर्जापुर, ठीक है। तो जो सर अगर सैटर्न सन दोनों 7th हाउस में है तो फिर उसमें फिर ज्यादा झगड़ा नहीं होगा, मतलब सैटर्न की ही सुनी जाएगी, शनि की सुनी जाएगी, उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। सैटर्न इज हैविंग डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, यहाँ पर कमजोर लोगों के पास ज्यादा पावर है। ओके। पावर के पास पावर नहीं है। सूर्य के पास पावर होते हुए भी पावर नहीं है। क्यों? सूरज ऑपोजिशन में बैठा है, आपको मिनिस्टर जानता है लेकिन ऑपोजिशन का, ठीक है। जब तक आपको ये मिनिस्टर जानता है उसकी सरकार गिर जाती है। अब याद रखना, ओके लेट मी टेल यू वन थिंग। सो देयर वाज अ गाय हु वाज एक्चुअली फाइटिंग इलेक्शंस। तो 3 बार उसने इलेक्शन लड़े और तीनों बार वो इलेक्शन हारे थे। तो मेरे पास आए, कहते सर हम इलेक्शन हार रहे हैं। मैंने कहा यार तू अपना चार्ट छोड़, अपने ना पीए का चार्ट दिखा। उसके पीए के 7th हाउस में सन था। मैं कहा भाई जिसके साथ ये पीए रहेगा वो ऑपोजिशन में ही रहेगा। तो मैंने उनको कहा यू हैव टू चेंज योर पीए फर्स्ट, मेक श्योर यू गेट अ पीए विद द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सूर्य। तो जब उनका पीए बदला अब वो सरकार में है। ओके। So small efforts, small remedies. Now this is a part of remedies. If you want to become the minister, if you really want to have rutba in your life, never hang out with people with 7th house sun. If you will hang out with people with 7th house sun, you will stay in opposition because they will know you. Okay. So this is just small example of remedies and channelizing your chart. So sometimes your chart can be amazing. Your chart will have no problem. But the people right and left to you will change your combinations, will affect you. So this is the, यही तो ज्योतिष का पूरा सिद्धांत है, एक चीज का दूसरी चीज पर प्रभाव, ठीक है। हाँ जी स्मिता जी, you wanna ask something? मेरे my Surya is in 12th house, sorry, yeah, Saturn is in 9th house and Mangal is in 12th house. Does that mean there's no aspect, there's no conjunction? So this will be like that always? No. Listen. Saturn is 7, 8, 9, 10 looking at this house, Mars is looking at this house. ठीक है, तो 6th हाउस में कंजंक्शन बन गई, कोर्ट में कंजंक्शन बन गई। दिस इज कोर्ट, दिस इज पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी थाना, ये सब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। तो एक बार आए तो दैट्स ऑल। हाँ आएगी, एक बार जरूर आएगी, दैट इज फॉर श्योर। यहाँ देख रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम आने के बाद वो ही खत्म। हाँ वो निकल जाएगी, या इट विल बी गॉन। दैट इज योर कार्मिक अकाउंट ना, दिस इज योर कार्मिक अकाउंट, यू हैव टू क्लियर इट। ओके। तो सर मार्स और सैटर्न अगर मिलके बैठे हैं तो anyhow they are expecting the 7th house, 7th to it. Yes, so the 7th to it will actually be more problematic than the वो वाला house, ठीक है ना। So 7th to it is actually more problematic. So now you are getting it, now you are getting there. So transit वो दशा वो सब में भी नहीं आना चाहिए। हाँ मंगल शनि की दशा भी देखो, अब अगर मंगल शनि का कंजंक्शन है और मंगल शनि की दशा आएगी उस टाइम पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी।
या गनाती कारक की दशा आएगी, उस टाइम पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, बिकॉज गनाती कारक इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ मार्स एंड सैटर्न. ठीक है. नाउ बाय चांस इन योर चार्ट इफ गनाती कारका इज अगेंस्ट एनिमी ऑफ द मार्स एंड सैटर्न, that will cause different kind of trouble. Let's suppose the sun is ganati karka and your Mars and Saturn is making certain yoga. The whole government will go against you. I'll not speak the name of people with this. They are very famous people. You guys can decode by themselves. जिनके खिलाफ पूरी सरकार चली गई. And then go look at their charts. हाँ जी अनिमेश जी. सर माय क्वेश्चन इज कि अगर मार्स और सैटर्न का एस्पेक्ट कैप्रिकॉर्न पे आ रहा है तो मार्स के लिए तो वो एक्सॉल्टेशन पॉइंट है और सैटर्न की वो अपनी राशि है, तो तब भी वो उस घर को खराब करेंगे. Very good question. So, remember, when any planet is looking at the sign of their exaltation, they are always trying to find the way to make sure that house goes better. Make sure that जल्दी से जल्दी उस घर का काम हो. Now what is Capricorn? Capricorn is karma. So it will try to make sure कि आपका कार्मिक अकाउंट क्विकली चले. Okay, that is what Mars will try to say. But remember, Mars कौन सी दृष्टि से देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तो मंगल 7th दृष्टि से देख रहा है तो मंगल खुद नीच का है. He is powerless to actually do something. ओके अगर वो 4th दृष्टि से देख रहा है तो अगेन ही इज पावरलेस बिकॉज ही विल बी इन द साइन ऑफ लिब्रा. ओके अगर वो 8th दृष्टि से देख रहा है तो ही विल ट्राई टू डू समथिंग बट इवेंचुअली बिकम पावरलेस बिकॉज वो जेमिनी से देख रहा है और वहां से वो मूविंग टूवर्ड्स द कहां पर है, मूविंग टूवर्ड्स द नीचा है. बट जस्ट इन केस इट इज रेट्रोग्रेड, only then it will help you finish your karmas quickly. Got it? Second thing, the Saturn looking into own sign. Okay, whenever the Saturn looks into the own sign, it will make you dedicated, slow and progressive. So slow dedicated progress towards that house will happen. Problem फिर भी आएगी लेकिन अपनों से आएगी. Got it? समझ में आया? Yes. तो दृष्टि कौन सी? एवरी दृष्टि इज डिफरेंट. डू यू नो द डिफरेंसेस बिटवीन द दृष्टिज? द 4th दृष्टि ऑफ मार्स एक्ट्स डिफरेंटली देन द 8th दृष्टि. द 3rd दृष्टि ऑफ सैटर्न एक्ट्स डिफरेंटली देन द 7th और द 10th दृष्टि. So someday we will discuss about the drishtis as well. What is the difference between 4th and 8th drishti? Got it? So all the drishtis are working in a different way. The Jupiter's 5th and 9th drishti work totally differently. The Saturn's 3rd and 10th works differently. And even the 7th drishti for each planet works differently. हाँ जी सीमा जी. सर अगर मार्स डेबिलेटेड है और वो जिस घर को देख रहा है तो ज्यादा नुकसान करेगा फिर उस घर को? क्यों ज्यादा क्यों करेगा? पावरलेस है मंगल, कम नुकसान करेगा. इट इज योर ब्लेसिंग इफ योर मार्स एंड सैटर्न इज इन दिस सिचुएशन एंड वन ऑफ इट इज इन नीचा साइन. हाँ ये मार्स है ना मेरा डेबिलेटेड 9th में. दैट इज इट इज योर लक. इट इज गुड. अब यहाँ देखो, नॉट एवरी प्लैनेट व्हिच इज डेबिलिटेटेड इज बैड. हियर द डेबिलिटेटेड प्लैनेट इज गुड. फिर सैटर्न की पावर ज्यादा हो गई जो 10th हाउस में 3rd दृष्टि से 12th हाउस को देख रहा है. देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है ना. तो शनि के पास पावर ज्यादा है. क्यों पावर ज्यादा है? क्योंकि वो 10th हाउस में है, लेकिन वो भी बेचारा लियो में फंस गया. ही इज इन एनिमी साइन. तो यहाँ पर भी मंगल शनि का वो प्रभाव नहीं आएगा जो आना चाहिए. तो आपके वो बचाने वाले बहुत प्लैनेट्स हैं. कोई आपने अच्छे कर्म किए, एंड मोमेंट पे आपको बचा रहा सब कुछ. और जैसे सन 12th में जाके डेबिलेटेड हो गया वो भी. हाँ सूर्य डेबिलिटेटेड है. 8 नंबर लगन आ गया. अब याद रखना 8 नंबर लगन में मंगल यहाँ पे डेबिलिटेटेड होता ही नहीं. अच्छा 8 नंबर लगन में मार्स नेवर गोज इनटू डेबिलिटेशन. There are 2 lagnas where the Mars never goes into debilitation. The first lagna is the Cancer lagna. In the Cancer ascendant, if the Mars is in the ascendant, it is not debilitated because it is Yoga Karaka sitting in the lagna on the takht.
Second is the 8 number ascendant and Mars going in the 9th house because it is again with the Yoga Karka Chandra. So in these two cases, the Mars never go into debilitation. ठीक है? Basics. Strengthen your basics. सर एक और क्वेश्चन है, अगर किसी का मार्स सैटर्न का एक्सचेंज है, जैसे मार्स बैठा है 12th हाउस में और सैटर्न एक्सचेंज है मत 3rd पढ़ो हाउस में. अभी, एक्सचेंज मैं किसी और दिन पढ़ाऊंगा. एक्सचेंज योगा इज अ वेरी डिफरेंट योगा टू अंडरस्टैंड. ठीक है? हाँ जी वैभवी जी. सर जैसा आपने कहा दैट इफ मार्स इज इन जेमिनी, ओके, एंड लेकिन भाव चार्ट में, ओके, हमारे लग्न चार्ट में मार्स इज इन जेमिनी, लेकिन भाव चार्ट जो होता है ना, भावा चार्ट, भाव चलित is Mars is coming in the 4th house. ऐसे नहीं होता. भाव चलित को पढ़ने का और यूज करने का तरीका ही अलग है. भाव चलित Okay, इज so द it will लास्ट. not. यू हैव टू सी द लग्न चार्ट ओनली. Okay. ठीक है? भाव चलित चार्ट इज द एंड मोमेंट चेंजेस एंड दोज एंड मोमेंट चेंजेस विल एक्चुअली इफेक्ट यू इन अ डिफरेंट वे. Okay. ठीक है? तो वो अलग फैक्टर है. भाव चलित भी हम किसी और दिन पढ़ेंगे, नॉट टुडेज टॉपिक. ठीक है? आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग. दिस इज समथिंग न्यू दैट यू गॉट टू नो. यस सर. एंड दिस इज़ वेरी बेसिक. अभी मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है, हमारा वक्त चला गया है ऑलरेडी. इट्स मोर देन एन आवर. मेरा मन था मैं हर राशि में, हर हाउस में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूं. किसी और दिन करेंगे. इट इज़ टोटली फाइन. बट रिमेंबर दिस, इफ़ यू हैव दिस योगा देर इज़ वन वे टू चैनलाइज इट एंड दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी दैट आई एम गोना टेल यू राइट नाउ. एंड दैट रेमेडी इज़ रिसाइटिंग हनुमान चालीसा एवरी डे. ठीक है? And not on your bed, but at the same place at same time. And the best time for it is either the east or the west. That simply means either sunrise or sunset. यदि आप संध्या के समय या सुबह सुबह सूर्य उदय के समय हनुमान चालीसा एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो आपको मंगल शनि का इफेक्ट कम देखने को मिलेगा. Got it? चलो. See you guys soon. If you want to be part of our courses, you guys are most welcome. We will be starting from very scratch and you will be getting astrology 101 and advanced astrology course along with it. ठीक है? जिसमें हम ऑलरेडी 60 आवर प्लस का मटेरियल कर चुके हैं. एंड यदि आप रेमेडियल पार्ट और वास्तु, पर्सनलाइज्ड वास्तु की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं और आपको लगता है कि आपको वैदिक आती है तो आप उसमें भी पार्ट बन सकते हैं. चलो, गुड लक, बाय बाय. थैंक यू सर.